Hello everyone, this is Sanjali, your accountancy subject teacher. Today we are going to continue our chapter Cash Book. In this video, we are going to cover triple column cash book with example. If you have not seen my previous videos, you can see the description box in which you can find my previous videos of accountancy as well as business studies. So let's get started. So triple column cash book is our today's topic. So what is a triple column cash book? So as its name suggests that it is a triple column, which means there are three columns of amount. For example, here may be a cash column, bank column and discount column. As you can see, these are the three columns and we have to write down the amount in under these columns. Okay, next example can be maybe a cash, bank and bank. Here the bank can be a one is Canara Bank and another one is a Yes Bank. Okay, so it is possible that a company having the two bank accounts and company is preparing a cash book with a cash column, one bank and another bank. So this book will also be considered as a triple column cash book. So let's move to our practical problem. So here you can see the specimen, our practical problem. So I'm going to discuss this follow problem 14, which is from Kalyani Publishers. Here you can see that the question says that Navjot Singh operates two bank accounts. नवजोत सिंह है जो कि दो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ कॉलमनर कैश बुक विद टू बैंक अकाउंट्स. सो दे आर सेइंग वी आर हैव टू प्रिपेयर cash book in which there will be a cash column and two bank columns will be there. So here you can see the specimen for this question. So first of all we will write down cash book triple column. Okay, after that we will write down date, particulars, ledger folio, cash. After that we will check which bank accounts names RBL Bank and Yes Bank. So second column of amount will be RBL Bank. Okay, and here will be Yes Bank. So we are having the three columns of amount. Okay, so next date, again particulars, ledger folio, cash, RBL Bank, Yes Bank, right? So here this is our debit side and this is our credit side. And as you know what is the rule of the cash book, on debit side we will record all the receipts. Receipts means whatever we are receiving, whether in the form of a cash or a bank balance, we will write down on debit side, and vice versa as if we are doing the payments whether in a cash or from the bank. So what we will do, we will record it on credit side, right? So let's start with our practical problem, that is follow problem 14. Okay, so here you can see on 2017 March 1 we are having the opening balances. We are having a cash, RBL Bank has debit balance and Yes Bank has credit balance. Yes Bank has credit balance means they have taken a overdraft, they are having a negative balance. So whatever is given, if they are saying that this is a debit balance, we will write down on a debit side. If they are saying it is a credit balance, then we will write down on a credit side. So what we will do, here we will write down date is, the month is March 1 2017 to balance brought down. Brought down means opening balance. So as in our question you can see that they are talking about the opening balances. It means इस मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा था. तो देखते हैं कैश का बैलेंस कितना पड़ा है. कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, इट कैन नेवर हैव वो क्रेडिट बैलेंस. क्यों नहीं क्रेडिट बैलेंस हो सकता? आपकी पॉकेट में जितने पैसे हैं आप उतने ही
खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। बट बैंक आपके, अगर आपके बैंक बैलेंस में पैसा कम है और आप बैंक से पैसे ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में ले सकते हैं, बट नॉट यू, only a businessman, only a current account holder can take this facility. Okay, after that है RBL bank amount. They are having a debit balance, opening balance, that is 46,000. so RBL कॉलम के बीच में हम क्या डाल देंगे यहाँ पर 46,000. and as we know we are having a yes bank, but yes bank have credit balance. They are having opening credit balance. You can say that they are having a negative balance. So we will write down by balance brought down. Amount will be 15,500. Okay, so they are saying they are both cash and RBL. Cash has always debit balance. Okay, RBL बैंक हैज़ डेबिट बैलेंस, तो हमने डेबिट साइड पर उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिख दिया, और क्रेडिट साइड पर हमने येस बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था लिख दिया. ओपनिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे BD. BD means brought down, which means opening balance. And as we know, whenever we will note down on debit side, we use TO, two word, and if we are recording the transaction on credit side, we will use the word BY, buy. Okay, next is March 4 received a check of RBL bank from Mansoor for 12,500 and deposited into बैंक. कहते आपने एक चेक रिसीव किया RBL बैंक का मंसूर से, ओके, और आपने उसको बैंक में जमा करवा दिया. इफ़ यू आर रिसीविंग अ चेक, इट मीन्स देयर इज दिस इज अबाउट रिसीट साइड, सो वी विल राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड. सो डेट इज March 4. यू आर रिसीविंग अ चेक ऑफ RBL बैंक का चेक आपको आ रहा है मंसूर से. सो हम लिखेंगे यहाँ पर टू मंसूर अकाउंट. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा टू मंसूर, या अकाउंट भी लिख सकते हैं या सीधा टू मंसूर भी लिख सकते हैं, चलेगा. आफ्टर दैट 12,500 आपने RBL में डिपॉजिट भी करवा दिया, तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे. ओके, सो 12,500 बैंक RBL बैंक की रिसीट है. नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू येस बैंक. आपने क्या किया, जो कैश था वो येस बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. तो देखिए, आपसे देखा जाए, अगर हम इसकी एंट्री देखें तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो होगी, आपने कैश डिपॉजिट करवाया येस बैंक में. किसका बैलेंस बढ़ा, येस बैंक का बैलेंस बढ़ गया. ओके, सो येस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो येस बैंक का बैलेंस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो वो है रिसीट. तो 11,300 हम डेबिट साइड पे लिख देंगे. एंड कैश हमसे जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट साइड पर डाल देंगे. तो उसकी अमाउंट क्या होगी, अमाउंट विल बी सेम 11,300. अब ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें डेबिट साइड भी अफेक्ट हो रही है, चाहे वो येस बैंक की फॉर्म में हो रही है, और क्रेडिट साइड भी अफेक्ट हो रही है जो कि कैश की फॉर्म में हो रही है. सो दिस इज नॉन एज कॉन्ट्रा एंट्री एंड विच इज डिनोटेड बाय C in a ledger folio column. Next turn arises, which name we will use here. तो नेम कौन सा यूज़ करेंगे March 6 के लिए. If we are recording the amount in a yes bank column, then we will write down here to cash account. Okay, अगर हम कैश में पैसा डाल रहे हैं तो कैश के नेम से एंट्री नहीं डाल सकते. तो बाय विच बैंक हमने डाला था येस बैंक में, तो बाय येस बैंक अकाउंट के नेम से हम एंट्री डाल देंगे. ओके, डेट विल बी March 6. डन. नेक्स्ट इज March 9 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम RBL बैंक. प्रीमियम पे किया गया RBL बैंक से. सो दिस इज अ पेमेंट है, तो March 9 को देखेंगे, बाय इंश्योरेंस के नेम से हम पेमेंट कर देंगे.
ओके अभी यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपने लाइफ के लिए पे किया है, तो ड्राइंग का था, सिंपल इंश्योरेंस लिखा तो बाय इंश्योरेंस अकाउंट के नेम से हम लिख सकते हैं और आरबीएल बैंक से पैसा निकाल देंगे, बिकॉज पेमेंट कहाँ से की गई, आरबीएल बैंक से 4500. So this is the payment side and debit side is concerned with the receipt side. Next transaction is March 9 is done. So March 13 purchased the goods for cash rupees 9,000 by check of RBL Bank 1600 and Yes Bank 3500 and on credit from Sharmila 6,000. So they are saying we are purchasing the goods. Whenever we are purchasing the goods, obviously there is a payment. So we will write down on the payment side, which means on credit side. Okay, so we are purchasing the goods. So March 13 we are purchasing the goods, so by purchases account. Yes, here you can see कैश में हम परचेज कर रहे हैं 9,000 का, आरबीएल से पेमेंट जा रही है 1600 एंड 3500 जा रहेगा हमारे येस बैंक अकाउंट से. सो 9,000 जाएगा, पेमेंट होगी हमारी कैश से आई थिंक 1600. यस 1600 गया हमारे आरबीएल बैंक से एंड यहाँ पर आ जाएगा 3500. ये होगी पेमेंट हमारे येस बैंक से. ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. उसके बाद बोला उसने शर्मिला से हमने क्रेडिट पर 6,000 की ट्रांजैक्शन की. तो हमें पता है कि जब भी क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन की जाती है तो उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अ कैश बुक, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अ परचेज बुक. If we are preparing a purchase book, then we will record credit transactions as well. But in this book, we will record only cash and bank transactions. Okay, so we are avoiding, we are ignoring, we will not record this transaction of a purchase on credit, right? Next is at March 16 issued a Yes Bank check to Sharmila to settle her account आफ्टर रिसीविंग 2% डिस्काउंट. तो कहते हैं मार्च को 16 को हमने एक इशू किया येस बैंक को, येस बैंक चेक शर्मिला को, शर्मिला से हमने क्रेडिट में परचेजेस की थी ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में. तो अब हम क्या कर रहे हैं, मार्च 16 को हम शर्मिला को पेमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू, येस बैंक के थ्रू, और 2% डिस्काउंट रिसीव भी हुआ हमें डिस्काउंट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन हियर मार्च 16 we are doing a payment. okay, तो हमने पेमेंट करनी है. तो क्या क्यों पेमेंट कर रहे हैं, शर्मिला को कर रहे हैं क्योंकि हमने क्रेडिट पर उसे किया था. तो जब भी हम क्रेडिट पर पर्सन क्रेडिटर को करते हैं तो हम पर्सन का नेम लिखेंगे, टू बाय शर्मिला अकाउंट वी आर गोइंग टू पे, राइट. तो हमने येस बैंक का चेक इशू किया है, इशू करने का मतलब भी पेमेंट होती है. तो देखिए शर्मिला को पेमेंट देनी थी 6,000 और उसके लिए हमें 2% का डिस्काउंट मिल जाता है. तो आप देख सकते हैं 6 2 12 और 120 रुपीज़ का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया. इट मीन्स हमने अब पेमेंट कितनी करनी है, हम पेमेंट करेंगे 5880. ठीक है, तो हम 5880 का चेक हमने इशू कर दिया, राइट. तो इतनी पेमेंट येस बैंक से चली जाएगी बाय शर्मिला अकाउंट से. डेट विल बी मार्च 16. ओके नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी मार्च 20 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय आरबीएल बैंक. तो आरबीएल बैंक में इंटरेस्ट रिसीव किया गया. ओके तो रिसीव किया गया तो रिसीट है, तो रिसीट होती है डेबिट साइड पर. सो हम लिखेंगे इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ टू इंटरेस्ट अकाउंट. कितनी अमाउंट है हम चेक कर लेते हैं. हमारी अमाउंट यहाँ पर है 3300 एंड मार्च 20. तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्च 20 3300 आरबीएल बैंक में हमने रिसीव किया, राइट. तो आरबीएल में हम रिसीव करेंगे, राइट. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं मार्च 23 ट्रांसफ़र किया 10,000 आरबीएल से येस बैंक में डाला. ओके
तो येस बैंक का बढ़ गया बैलेंस, आरबीएल का कम हो गया। तो येस बैंक में डाल दो 10,000 रुपये और आरबीएल में डाल दो 10,000 रुपये उसकी तरफ से पेमेंट। आरबीएल से हमने येस बैंक में डाला था, सो येस बैंक में इंक्रीज हो गया और आरबीएल बैंक से कम हो गया। सो इन दिस पॉइंट, so 10,000 is increases in Yes Bank and reduced in RBL Bank. So what we will do, we have written on the debit side 10,000 under Yes Bank column and 10,000 under RBL Bank column on credit side. So this is a contra entry, both accounts are affected. We can see that debit side भी affect हुई और क्रेडिट साइड भी अफेक्ट हुई। सो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। ओके, सो हमने यहाँ पर येस बैंक में डाले पैसे और दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट हुआ वो था आरबीएल बैंक। तो येस बैंक में जब भी अमाउंट डालनी है तो यहाँ पर हम येस बैंक नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे आरबीएल बैंक। उसका जो ओपोजिट अकाउंट होगा वो वाला अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा। एंड हेयर द डेट इज मार्च, यू कैन सी मार्च 23। ओके, सो मार्च 23 हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। ओके, चलिए 23 मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर आएगा बाय येस बैंक अकाउंट मार्च 23, so 10,000, right? Next, here you can see the next transaction is about March 25th, cash withdrawn from the RBL bank for office use। कहते कैश विड्रॉ करवाया गया आरबीएल बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 4500। तो देखिए आरबीएल बैंक से पैसा गया और कैश आया, इट मीन्स कैश इज इंक्रीजेस एंड आरबीएल बैंक बैलेंस इज डिक्रीजेस, राइट? सो कैश के लिए वो हो जाएगी रिसीट, तो 4500 हम कैश में डेबिट साइड पर डाल देंगे क्योंकि ये हमारी रिसीट साइड है। एंड आरबीएल बैंक से पैसा गया तो हम आरबीएल बैंक में पेमेंट साइड पर 4500 डाल देंगे। एंड एज यू कैन सी दैट दोनों ही अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो आर कॉन्ट्रा एंट्री। सो वी विल राइट डाउन, अगर कैश में डाल रहे हैं तो हमने आरबीएल बैंक में डाला ना, तो टू आरबीएल बैंक अकाउंट के नेम से अमाउंट डालेंगे एंड दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। एंड इफ वी आर राइटिंग द अमाउंट इन आरबीएल कॉलम, देन व्हाट वी विल डू, उसका जो ऑपोजिट है, एक हमने कैश में डाला तो हम यहाँ पर बाय कैश अकाउंट के नेम से अमाउंट डाल देंगे। एंड हेयर द डेट इज मार्च 25। ओके, सो राइट डाउन द डेट मार्च 25 and March 25 to RBL bank account 4500 by cash account RBL bank में 4500 and this is the contra entry. Our last point is March 27 Yes Bank debited ₹200 for bank charges। तो क्या बोला गया कि बैंक चार्जेस ने येस बैंक ने बैंक चार्जेस कट किए, उसने लिखा है डेबिटेड, आपने इसको करना है क्रेडिट। क्यों? सिंपल सी बात, ये आपकी पेमेंट है, क्योंकि जो बैंक आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है तो बैंक ने भी कुछ चार्जेस कट करने होते हैं, ठीक है? तो वो आपके अकाउंट से ही पेमेंट ले लेता है, तो पेमेंट ले रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो 200 रुपीज़ आपके बैंक चार्जेस के अकाउंट से बैंक से निकल जाएंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, अमाउंट कितनी है 200, तो येस बैंक से 200 रुपीज़ बैंक चार्जेस के लिए चले गए, तो ये आएगा यहाँ पे March 27। नाउ you can pause this video and do the calculations and balancing. So how you will do it? सबसे पहले आप कैश कॉलम का आरबीएल बैंक का टोटल करेंगे दोनों साइड्स का। ओके, तो जो भी साइड बड़ी साइड है वो वाली साइड की आप अमाउंट्स को लिख देंगे। उसके बाद जहाँ पर बैलेंस डालने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन और लास्ट डेट को। ओके, सो हियर यू कैन सी डेबिट साइड बड़ी आ रही है कैश की और आरबीएल बैंक की, इसका टोटल आ रहा है 67,500 एंड 61,800। तो
तो हम सबसे पहले कैश की बैलेंसिंग करेंगे। 67,500 में से इसका जो कैश का क्रेडिट साइड है उसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो उसकी जो शॉर्टेज आ रही है बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, वो आएगा 47,200। ओके, तो 47,200 विल बी द कैरी डाउन बैलेंस ऑफ कैश कॉलम। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक का टोटल डेबिट साइड आ रही है 61,800 और ये साइड ग्रेटर है दैन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड से हमने ये सारी अमाउंट्स डिडक्ट करने के बाद हमारी जो शॉर्टेज पड़ रही है, जो पैसे यहाँ पर कम पड़ रहे हैं इस साइड पर, तो वो हमने डाल दिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सी डेट को डालेंगे? उस मंथ की लास्ट डेट को। ओके, तो एवरी मंथ बेसिकली चेकआउट किया जाता है कि कितने अमाउंट हमारे पास है और कितनी बची है और कितनी फर्दर हम यूज़ करेंगे और ऐड करने की ज़रूरत है। तो मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 41,200 आ जाएगा। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द येस बैंक, तो येस बैंक की ये वाली क्रेडिट साइड इज ग्रेटर दैन द डेबिट साइड। तो ग्रेटर इस साइड का टोटल आ रहा है 30,580। तो 30,580 में से अगर हम ये अमाउंट्स डिडक्ट कर दें तो हमारी जो बैलेंसिंग बढ़ रही है, यहाँ पर जो शॉर्टेज आ रही है वो है 9,280। ओके, सो 9,280 विल बी टू balance carry down. This is a closing balance of yes bank column. Okay, so it will be also on the last date of the particular month, that is March 31. After that ये हमारे जितने भी CD होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, वो नेक्स्ट मंथ में क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। तो मार्च के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा? अप्रैल 1। सो हम क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा 47,200 और यहाँ पर आएगा 41,200। ओके, आफ्टर दैट अगर इस साइड का CD है तो इस साइड में BD हो जाएगा। तो हम अगेन लिखेंगे अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग बैलेंस है और कौन सा? येस बैंक। सो येस बैंक लास्ट कॉलम था, तो 9280। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।